Hi and welcome back to my lecture again. In the previous lecture, we have seen that how different types of complexes are get formed by using valence bond theory. अभी हम देखेंगे यहाँ पे what are the limitations of valence bond theory. Okay, so first of all, the first limitation is that valence bond theory, it fails to explain the low spin complexes as well as high spin complexes. Yes, means it fails to explain the nature of strong field ligands as well as weak field ligands. Strong field ligand क्या होता है? I told you. और क्या होते हैं weak field ligand? That also I told you. So valence bond theory does not give any explanation regarding the strong field ligands as well as weak field ligands, and hence it also does not explain the concept of high spin complex as well as low spin complex. Second thing, the second limitations of valence bond theory is that valence bond theory fails to explain the colors of the coordination compounds. You know that different compounds are there and they are colorful. But how this color arises, appears in the complexes, इसके बारे में बताना valence bond theory को नहीं आया. And the third one is here. Valence bond theory has put some structures. You know that tetrahedral, square planar, octahedral. तो ये जो होते हैं different type of structures. Also these structures, they not necessarily match with the structures obtained by the experimental observations. एक्सपेरिमेंट की वजह से, मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स इनके प्रेडिक्ट हुए, दे आर नॉट इन परफेक्टली matching with the structures of valence bond theory. So these three are the limitations of the valence bond theory. Okay, so उसके बाद अभी हमें देखना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे the important topic, I will say the most important topic, that is nothing but crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम लोग शॉर्ट में CFT कहते हैं. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जस्ट लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देयर इज अ VBT. सो फॉर दिस हियर वी हैव टू यूज द CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. उसके assumptions, नाउ सी, एज पर द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, it says that metal and ligand, both they are just like the point charges. Metal as well as ligand, both they are point charges, and so metal as well as ligand, they are nothing but metal and ligand, they are nothing but the point charges, and the interaction between them is purely, yes, electrostatic force of attraction or repulsion, whatever say. Means the interaction between the metal or the ligand is purely electrostatic in nature. Second thing here, you know that in case of valence bond theory, आपको पता है, whenever metal is approached by the ligand, you know that ligand will approach the central metal atom. Usually this central metal atom
हैज d ऑर्बिटल्स. ये होते हैं 5 टाइप के d ऑर्बिटल्स. सो dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So these are nothing but called as degenerate ऑर्बिटल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं degenerate ऑर्बिटल्स. मीन्स all these 5 type of d orbitals, they are having equal amount of energy. So they are having same energy. Okay, so dxy, dyz, dzx, dx square minus y square as well as dz square. So all these 5 orbitals are known as degenerate orbitals, and I told you they are called as degenerate because they are having equal amount of energy. And remember, electron, when it enters, it can enter in any of these d orbitals. इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में एंटर हो सकता है. अभी ये जो है, these are nothing but the orbitals of metal, you know that central metal, I will say. All they are having equal energy. Okay, now ये है मेटल की बात कर रहा हूं मैं. ligands, you know that ligand will approach to the central metal atom. ठीक है, अभी जैसे ही लिगैंड अप्रोच होगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन d ऑर्बिटल्स में. एट द सेम टाइम लिगैंड्स, दे also have their electrons. I told you one ligand will give 2 electrons. समझिए, अगर वहां पे 4 लिगैंड है तो दे मतलब that 4 ligands, they will give 8 electrons. अगर समझो वहां पे है 6 लिगैंड, तो वो 6 लिगैंड अपने साथ में 12 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे. एंड नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल present in the d orbital as well as the electrons from the ligand, now they will feel they will feel the repulsion forces. I mean, they will begin to feel the repulsion. क्योंकि दोनों के यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में होगा रिपल्शन. and that's why these degenerate orbitals, they get split up. क्या होगा इनका, ये हो जाएंगे split up. इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये है वो different types of, I mean 5 types of degenerate orbitals. dxy, dyz, dzx. इसमें आप देख सकते हो dxy के यहाँ पे, you know that d orbital, they are having double dumbbell shape. They are having double dumbbell shape. Their lobes, you can see, they are in between the axis. They are in between the axis. देखिए यहाँ पे ये है x axis और ये है y axis, तो इनके बीच में, so their lobes, you know lobes, these are the lobes. These lobes are present in between the axis. तो ये हो गया dxy. अभी यहाँ पे देखिए, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस, इनके लोब्स आ रहे हैं बीच में, तो इनको हम लोग बोलते हैं dyz. सिमिलरली यहाँ पे है x और z, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस. तो ये 3 टाइप के हो गए, dxy, dyz, dzx. लेट मी टेल यू, देयर लोब्स आर इन बिटवीन, यस, एक्सिस. ये हो गए 3 टाइप के. अभी देखिए, ये जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू कैन सी इसमें डिफरेंस क्या है. ये तीनों जो है, इनमें एक बात क्या है कि इनके लोब्स कहां पे आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस.
और इनके लोब्स कहां पे आ रहे हैं? देयर लोब्स आर ऑन द एक्सिस. यू कैन सी यहां पे क्या है, ये है अलोंग द एक्स एक्सिस और ये है अलोंग द वाई एक्सिस. तो इसका नाम क्या हुआ? dx square minus y square. And now you can see here both the lobes are present along the z axis और ये है z axis. So here the lobes, for this lobes are along the axis. तो इस तरीके से यहां पे ये 5 होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. जब तक लिगैंड नहीं आया दे आर, I mean they will be degenerate orbitals. But as the ligand will approach, their energy will now no more same. इन सब की एनर्जी बिल्कुल सेम नहीं होगी, बल्कि ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 ग्रुप्स में. तो ये यहां पे हो जाएंगे स्प्लिट 2 ग्रुप्स में. ठीक है. अभी देखिए, पहले हम यहां पे बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो इमेजिन सपोज हियर विल बी COF6 3- या फिर यहां पे है CN6 3-. तो यहां पे ये जो है ligands they approach to central metal atom. Okay, and now when that ligand approach, now that orbitals they get split into 2 parts. Okay, अभी देखिए क्या होता है. अगर हम बात करते हैं स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगैंड जब भी अप्रोच होगा सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो यहां पे क्या होता है पता है? देयर लोब्स, यस, आई मीन ligand will approach to that orbitals where lobes are along the axis. सोचिए ये जो है 5 टाइप के d orbitals. Now in case of octahedral complexes, ligand will definitely approach to the central metal atom, but it will approach, yes, on the axis. तो ये जो है कौन कौन से देखिए यहां पे dx² - y² और दूसरा यहां पे कौन सा है dz². तो क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी जो है ये बढ़ जाएगी. सो देयर एनर्जी विल इंक्रीज. तो इनकी एनर्जी जैसी ही हो जाएगी इंक्रीज, तो ये जो 2 होते हैं, आई मीन dx² - y², आई विल राइट हियर dx² - y², और ये है dz², isn't it? अभी ये दोनों जो कि होते हैं जिनके लोब्स अलोंग द एक्स एक्सिस, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड्स कहां पे अप्रोच करेगा? अलोंग द एक्सिस वाले लोब्स पे. तो इनकी जो एनर्जी है ये बढ़ जाएगी. सो इट विल हैविंग द मोर एनर्जी. और ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको कौन कौन से, dxy, dyz एंड dzx, तो इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस नहीं है, देयर लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस. तो यहां पे आएंगे इनके, यस, dxy, dyz, dzx. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. ये जो होते हैं जिनके लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस, ये 2 है. इनको हम लोग बोलते हैं EG इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. और यहां पे कितने है? 3 है. तो यहां पे 3 है ना, EG में 2 है. इन केस ऑफ T2G देयर आर 3. तो यहां पे ये जो है ये है T2G. नाउ यू कैन सी हियर, ये जो थे ऑर्बिटल्स ये स्प्लिट हो गए इनटू 2 पार्ट्स.
Eg part and T2G part. Eg is now in the upper side having more energy, और ये जो है T2G इनकी एनर्जी कम है, क्योंकि as I told you in case of octahedral complex this will occur. ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें ये देखिए, in case of a T2G energy it is down and here energy will be on the upper part. तो जैसे ही यहां पे इनका हो जाएगा स्प्लिटिंग, यू नो दैट, तो ये स्प्लिटिंग जो भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं CFSE. I mean the energy which is required to split this 5d orbital into two parts is known as CFSE, crystal field splitting energy. CFSE, crystal field splitting energy. ओके, जिसको हम लोग दरअसल दिखाते हैं डेल्टा से, डेल्टा, और ये है फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा नॉट. दिस नॉट मीन्स हियर डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो ये है डेल्टा ओ फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. नाउ ये दो ग्रुप में बढ़ गए, इनकी एनर्जी कम है. अभी यहां पे इनकी एनर्जी क्या होगी? देखिए, नाउ देयर आर थ्री पार्ट्स, आई मीन dxy, dyz एंड dzx. तो ये जो एक्चुअली 5 पार्ट से ये यहाँ पे 3 पार्ट बने और यहाँ पे 2 पार्ट. सो हाउ विल राइट हियर 5 में से 5 at the denominator. Why 5 is there? Because there are 5 orbitals are present. Now among the 2 orbitals energy is decreased and ये डिक्रीज हुआ है बाय द अमाउंट 2/5. कैसे? क्योंकि 2 ऑर्बिटल जो है इसी में से अमंग द 2 ऑर्बिटल्स एनर्जी इज डिक्रीज. एनर्जी यहां पे हो रहा है डिक्रीज, तो हम यहां पे माइनस साइन देंगे बिकॉज एनर्जी इज डिक्रीज. अभी यहां पे अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले हिस्से में, यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज, और ये जो हो रहा है इंक्रीज इट इज अमंग द 3 ऑर्बिटल. सो हियर यहां पे जो फैक्टर हो जाएगा ये आएगा 3/5 और ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यू नो दैट इट्स इन द अपर पार्ट, एनर्जी इज इंक्रीज. सो और आगे है डेल्टा ओ एंड हियर विल बी डेल्टा ओ. सो इस तरीके से ये आपको आएगा, मतलब इस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर हमने देखा कि इसकी जो एनर्जी क्या हो जाएगी, इफ यू सी दैट प्रॉपरली द एनर्जी हियर विल बी 0.4. यू नो दैट अगर हम यहां पे देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू यस 0.4 माइनस, और ये जो है इसका लेवल पे क्या हो जाएगा? प्लस 0.6. सो इस तरीके से ये इनकी आती है वैल्यू. नीचे है 0.4 और ऊपर है 0.6. नीचे माइनस इसलिए लिखा है बिकॉज एनर्जी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिक्रीज. सो इस तरीके से यहां पे, तो ये इसको हम लोग कभी कभी यहां पे इस पैरामीटर को एनर्जी के 10 dq भी बोलते हैं, 10 dq. सो ये इन दिस मैनर इट इज कैन बी एक्सप्लेन. अभी यहां पे देखोगे आप लोग, तो वन थिंग I would like to tell you, in case of octahedral complex, यहां पे हमने लिखा है इस तरीके से, यहां पे स्प्लिटिंग हुआ है और ये है इसके एनर्जी के पैरामीटर्स. ठीक है. इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको चेंज करना होगा. क्या करने चेंजेस? नाउ आई विल राइट विद रेड पेन. तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड जब भी अप्रोच होगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो लिगैंड विल अप्रोच from the side, I mean from the to the orbitals in which lobes are in between the axis. मतलब वो अप्रोच किसको करेगा, dxy, dyz, dzx. तो क्या होगा, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या हो जाएगा, इनमें हो जाएगा रिपल्शन. तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये जो पार्ट है डी, मतलब ये 3 वाला पार्ट ये जाएगा ऊपर, और ये जो दूसरा पार्ट है dx² - y² और dz² वाला पार्ट ये आएगा नीचे. ये आपको यहां पे चेंज करना है. और यहां पे जो हमने लिखा है Eg, देखिए अभी इसमें उल्टा हो जाएगा ना, T2g का जो पार्ट रहेगा, सो हियर dxy, dyz एंड dzx, ये हिस्सा जो है ऊपर आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यस dx² - y², और ये है dz². अभी जैसे कि हम यहां पे इसको नोट करते हैं, लिखते हैं बाय द सिंबल T2g, तो यहां पे आपको T2 ही लिखने का है, T2g नहीं लिखने का है. इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, आई एम टेलिंग यू, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस मध्ये तुम्हाला इथे जी लिहायची गरज नाहीये. आणि इथे काय, इन केस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिर्फ ई. ठीक है, यहाँ पे जी मत लिखना बस. तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज करना है. बाकी आपको पता है कि यहाँ पे फिर हो जाएगा पॉजिटिव एनर्जी और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव. दैट इज द ओनली डिफरेंस. एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियरी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. Okay, in fact, so note down these things properly. चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो, note here, in case of octahedral complex and in case of tetrahedral complex. In case of octahedral complex, yes, ligands approach, yes, along the axis. Along the axis, and here ligands approaches, yes, in between the axis. इससे आपको समझ में आ जाएगा कि Eg कहाँ पे ऊपर है और Eg कहाँ पे नीचे है, and same for the T2g also. Okay, तो this is all about the crystal field theory. Note down these things properly. Now see that symbols like Eg, T2g, they are given by the स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स. मतलब वहां से ऐसे उनके नाम दिए गए हैं, T2g, Eg, like this from the spectroscopy. Next is now here factors affecting the crystal field splitting parameter. I told you जब भी होता है splitting that d orbitals का दो हिस्सों में, तो उसके लिए जो होता है पैरामीटर, that is nothing but delta naught, or you can say here delta O for octahedral complex. And it will be delta T in case of tetrahedral complex. Okay? अभी कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर को. द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ
crystal field splitting depends on the strength of the ligands. I told you in short in the previous lectures also what is meant by strong field ligand, what is meant by weak field ligand. लेकिन फिर भी एक बार चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है strong field ligands. The ligands in which, अभी ये इससे आपको मालूम चलेगा कि how to identify the ligands which are strong field ligands and which are weak field ligands. Okay, the ligands in which donor atoms are carbon, nitrogen or phosphorus, they are known as the strong field ligands. You know that donor atom means point of attachment. अगर ये होगा कार्बन, नाइट्रोजन और या फिर होगा फॉस्फोरस तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. इसे क्या होगा, ज्यादा स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल्स का. दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड. यू नो दैट स्पिन पेयरिंग. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से होता है स्पिन पेयरिंग. यू नो दैट. तो ऐसे जो होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले कॉम्प्लेक्स, आई मीन लिगैंड्स, दे विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. कौन से ऐसे एग्जांपल्स है? नो दैट साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, EDTA इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट इज अ ligand. EN ethylene diamine bidentate ligand. This is EDTA is nothing but a hexadentate ligand. ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया होगा इसका स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से. Then the next one is weak field ligand. कौन सा होगा? The ligands in which donor atoms are halogens like fluorine, chlorine, you know that, bromine, iodine और ऑक्सीजन और सल्फर. ये अगर है डोनर एटम्स, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स, इन केस ऑफ दिस डेल्टा नॉट पैरामीटर इज स्मॉलर. इस ऐसे में क्या होगा, जो भी होगा स्प्लिटिंग वो थोड़ा कम होगा. ऐसे कौन से एग्जांपल्स है वीक फील्ड लिगैंड्स के? F-, Cl-, Br-, I-, HCN, आइसो, यस, आइसोथायोसाइनाइड. तो जैसे आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, इसको हम लोग बोलेंगे फिर क्या, आइसोथायोसाइनाइड. आई थिंक फॉर HCN वी हैव टू राइट, सॉरी, NCS के लिए हम लोग लिखते हैं आइसोथायोसाइनाइडो एंड फॉर HCN वी हैव टू राइट इट एज थायोसाइनाइडो. तो थायो मतलब क्या होता है, सल्फर, तो इसका नाम है थायोसाइनाइडो. और अगर होता है NCS तो होता ये आइसोथायोसाइनाइडो. What is this here? Oxalato. You know that in case of anionic ligands we have to use the O. So here इस तरीके से आएगा इसका oxalato. Now increasing order of ligand field strength. यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर लिखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे दिया है. I- is having the lowest, you know that priority means it's a very weak field ligand. Then Br-, Cl-, and this is the order. So in this way these are, you know, these are nothing but a strong field ligands. और ये जो है वहाँ पे क्या है, they are weak field ligands. तो यहाँ पे क्या लिखा है, magnitude of the crystal field splitting depends on strength of the ligand. Strong ligands can approach closer to the central metal atom and results in large crystal field splitting. क्योंकि वो क्या है, you know that strong field ligands. ऐसे में क्या होगा, that value will, that delta nod और delta O parameter will increase, difference ज्यादा हो जाएगा. Oxidation state of the metal, मतलब I mean say more splitting will be there, will be taking place. Next is oxidation state of the metal. ये है पहला फैक्टर जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड. मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड है पहला फैक्टर. और दूसरा फैक्टर है कौन सा, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. A metal with higher oxidation state
is able to draw ligands closer to it and therefore cause more splitting. So क्या है, जिसका ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या करेगा, ज़्यादा स्प्लिट करेगा. मतलब ट्राइवैलेंट मेटल्स having positive, metals are having a positive states only. So अगर ट्राइवैलेंट कोई मेटल एटम है, it will cause more splitting than the monovalent or divalent, I will say. तो जितना ज़्यादा होगा वैलेंसी, I mean स्टेट ऑक्सीडेशन, उतना यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रहेगा उसका splitting. So these are the two parameters only, and these are the examples of a strong field and weak field ligands. Kindly note down this properly in your notebooks. Now the next part here is color of the octahedral complexes. You know that octahedral complexes, they get formed by the splitting of the d orbitals into T2G as well as EG groups. So there is a there is a delta naught parameter, that, and this delta naught parameter, it is measured by the help of experiments or the techniques of experiments different. Now here delta naught corresponds to certain frequency of electromagnetic radiation, usually in the visible range. A color complementary to the absorbed frequency is thus observed. अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होगा, विजिबल रेंज में यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, इसमें है टिटेनियम इज अ सेंट्रल मेटल एटम. नाउ यू कैन सी हियर टिटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22. तो ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे है 3d2 and 4s2 एट द एंड. अब अगर यहाँ पे Ti3+ यहाँ पे फॉर्म होगा, बिकॉज Ti3+ इज द स्टेट हियर. तो यहाँ पे आर्गॉन का रहेगा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज. 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे यहाँ से और 1 जाएगा यहाँ पे. तो D में बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. एक्चुअली I will show like this manner, क्योंकि जब भी हो जाएगा स्प्लिटिंग, तो that T2G will be there at the downward direction, I mean downward position, and EG will be at the upper position. Now this is the ground state. Ground state में क्या होगा, there will be normal state, no energy absorbed by that electron. It's a normal state when electron will not absorb any kind of energy or also not give any kind of energy. तो यहाँ पे T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा फिर 3d1 and 4s0 आफ्टर फॉर्मिंग Ti3+. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये है ग्राउंड स्टेट में. बट नाउ सी व्हेन दिस एनर्जी इज absorbed फ्रॉम द विजिबल रेंज, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ये T2G का यहाँ का जो रहेगा इलेक्ट्रॉन, इट विल जंप फ्रॉम T2G टू EG. EG में यहाँ पे उसने जंप किया. व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द विजिबल रेंज, इट विल गो टू एक्साइटेड स्टेट. इट विल जंप फ्रॉम T2G टू EG, जिसको हम लोग बोलते हैं DD ट्रांजिशन. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन बोलते हैं इसको. तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करते वक्त देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा नॉट पैरामीटर प्रमोट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G लेवल टू EG लेवल. ये इलेक्ट्रॉन इनमें से कहां पे भी हो सकता है प्रेजेंट, ओके. तो ये यहाँ पे जंप करेगा और जंप करते वक्त यहाँ पे एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप फॉर द TiH2O6+ कॉम्प्लेक्स is this much 520 nanometer and this much is the energy. तो ऐसे में जो भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा
एनर्जी और फिर उसका जो रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर इन दैट गिवन वेवलेंथ, तो ये है इन दैट केस फॉर एग्जांपल है वॉयलेट कलर फॉर द कॉम्प्लेक्स TiH2O6+। ये पुराने टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली दिया है, डिफरेंट वेवलेंथ्स आर देयर। अभी जो नया टेक्स्ट बुक अपना आया है तो उसमें दिया है नहीं प्रॉपरली, बट यू कैन रेफर द ओल्ड टेक्स्ट बुक इन विच डिटेल कलर्स आर गिवन विद देयर वेवलेंथ्स। ठीक है, अभी यहां पे देखिए, यहां पे इसका कलर है वॉयलेट कलर, ऑब्वियसली इट्स नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है ना। अभी यहां पे देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी कभी फॉर्म होगा, सो दिस विल बी द नेचर ऑफ दैट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। You know that in case of a tetrahedral complexes, there will be central metal atom like this, जो मैंने यहाँ पे अभी रेड पेन से इसको मार्क किया है, और ये जो है यहाँ पे ये है ligands. These are nothing but different types of ligands. And in this way you can see the arrangement is there. This is the x-axis and this is y-axis, and you can see that 4 ligands, they are present at the 4 corners of this tetrahedron. So in this way tetrahedral complexes have this kind of arrangement. It is given in your book also. ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के लिए मैं बात मतलब कहूंगा आपसे, यू नो दैट वॉयलेट, छोड़ दो इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर ये इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। रेड का है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन, यस, ब्लू का है ऑरेंज, वॉयलेट का यहाँ पे कौन सा है येलो। सो दे आर नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सो इन दिस वे दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव वॉयलेट कलर। अंडरस्टैंड? इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग ओनली एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Now the next topic is here applications of coordination compounds. The first one is here, you know that coordination compounds, they are very much useful in the daily life also. So पहले देखते हैं हम यहाँ पे क्या है इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, you know that hemoglobin present in the blood is an important part of blood which contain iron. Hb में क्या होता है present? Iron is present at the central metal atom. So you know that Hb is so much important for us. Hemoglobin is very important part. So Hb में क्या होता है? Fe is present at the center, or Fe is central metal atom. At the same time, you know that chlorophyll is an important pigment which is important part of the process known as a photosynthesis. तो इस chlorophyll में क्या होता है पता है? There is a magnesium metal present at the center. It's again an example of coordination compound. So chlorophyll is so important because the process of photosynthesis is very important to get the food, right? तो यहाँ पे ये है इसका first importance. And the next one is here. In medicines, the cisplatin complex, I think platinum along with NH3 and yes, Cl2 and NH3, Cl2 and NH3. This is the formula of the cisplatin, and you know that it is used in the treatment of cancer. So it's an important medicine used in the treatment of cancer, as well as you know that EDTA
इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये कॉम्प्लेक्स जो है, एंड EDTA इट कैन बी यूज इन द केस ऑफ लेड पॉइजनिंग. जब भी कभी होता है लेड पॉइजनिंग तो EDTA कैन बी यूज, yes, to cure that. So point number 2 is here medicine. Then the next one here estimation for the estimation of hardness. Water. Estimation of hardness of water. Now what is the meaning of the hard water and what is the meaning of the soft water? हार्ड वॉटर म्हणजे असं पाणी की त्याचा फेस होत नाही, बोरिंगचं पाणी जे खरंच खूप बोरिंग असतं प्यायला. सो इट्स अ हार्ड वॉटर. युजली यू नो दॅट सच अ काइंड ऑफ हार्ड वॉटर इट कंटेन द Ca2+ and you know that Mg2+ like ions. तो ऐसे आयन की वजह से दैट वॉटर इट बिकम्स हार्ड. ओके, ज्याचा फेस होत नाही असं पाणी. एंड द मीनिंग ऑफ द सॉफ्ट वाटर मीन्स जहाँ पे उसका फ्रॉथ, आई मीन फोम, उसका फॉर्म हो सकता है, दैट इज नोन एज अ सॉफ्ट वाटर. बट हाउएवर हियर हार्डनेस को अगर करना होता है एस्टिमेट, तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे EDTA अगेन. EDTA will form the complex with these ions. That's why it can be used to estimate the hardness of water. So this is the third application of the coordination compounds. इसके अलावा in the process of electroplating, you know that it's a process of giving the layer of more resistant metal on the surface of the base metal like iron. इन शॉर्ट, फॉर एक्झाम्पल माहिती आहे ना, बेंटेक्सचे असते बघा दागिने, बेंटेक्सचे दागिने असतात किंवा जे काही कोटिंग केलं जातं बऱ्याचदा बेस मेटलच्या वरती. सो दॅट इज नोन ॲज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द लेअर ऑफ मोर रेजिस्टंट मेटल लाईक गोल्ड, सिल्वर ऑन द बेस मेटल लाईक आयर्न, दॅट इज नोन ॲज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इन दिस प्रोसेस ऑल्सो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे बात करते हैं हम, तो यहां पे दिया है यस पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड. ओके, एंड दे कैन बी, या फिर यहां पे अगर हमने लिया AU तो भी चलेगा. यहां पे AU क्या होता है, गोल्ड. सो दीज आर द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. इसके अलावा इन द प्रोसेस ऑफ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, coordination compounds are so much important for the different tests to carry out in the laboratory. तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो इसमें भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग यूज करते हैं. इस तरीके से अभी मुझे लगता है कि हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, सो फॉर टुडे only we have to stop here. See you in the next lecture. Goodbye and thank you for watching.